Hello young physics learner, welcome to my class. This is Bhavna and I am going to explain you that formation of p-type and n-type semiconductor. This one is lecture number 4. Those who have not seen the previous lecture, just go through the lecture number 1, 2 and 3 and then you can easily understand the today's lecture, that is the formation of p-type and n-type semiconductor. In this lecture, I will explain you first of all the formation of p-type and n-type semiconductor, and then I will explain you on the basis of energy band diagram, which is not given in even NCERT. So you will go through with the lecture and you will easily understand what's the difference between the p-type and n-type semiconductor. So let's start. In my previous video, I explained you that the type of semiconductor, there are two types. SC, I told, the short notation for semiconductor. So one is the p-type semiconductor and second is n-type semiconductor. So meaning p-type means positive type semiconductor and n means negative type semiconductor. I have explained that topic, hole and electron. You can go through with that. So here the p-type semiconductor means positive type semiconductor and it is formed as in my lecture number 3. I explained you that pure semiconductor, pure SC plus trivalent impurity. Trivalent impurity, अगर ट्राई मीन्स क्या होता है 3, जिसके आउटर मोस्ट शेल में दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं, अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं देन दैट टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड ट्राईवैलेंट एटम्स. ओके, ट्राई, you can break this word tri and valent. Tri means 3, valent means valent is related with the valence electron. So if the pure semiconductor is mixed with, or you can say it as if the trivalent impurity is doped in pure semiconductor. Doping process ये मैंने आपको explain किया था that what is doping, that if we are just adding the impurity, pinch of the impurity, which is the part per million, एक small part, एक million amount of pure semiconductor में अगर add करते हैं तो उसे pinch of impurity कहते हैं. Just like the salt, small amount of salt in the cooked item or small amount of salt in pure water. Okay, तो pinch of impurity, if we are adding the pinch of impurity in the pure semiconductor, then the process is called doping. Okay, and now doping may be of two kind. In one kind you will get p-type semiconductor, in other kind you will get n-type semiconductor. So it depends on the dopant. What are dopant? These trivalent impurity, this is called dopant. Okay, so if you are just adding the trivalent impurity to the pure semiconductor, then the semiconductor become p-type and this trivalent impurity is called dopant and the process is called doping. If we are adding some pentavalent impurity to the pure semiconductor, again this is also called dopant. Okay, if we are adding the pentavalent impurity to the pure semiconductor, then the semiconductor become n-type, means negative type. सो पेंटावेलेंट एंड ट्राईवेलेंट आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि यही इम्प्योरिटी हम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4, इसीलिए हम इसे सेमीकंडक्टर कहते हैं. ये मेरे लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. तो इसमें क्या होगा, लाइक इफ़ देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन आइदर add the impurity which is having the 3 valence electron, that is trivalent, or we can add the impurity which is having the 5 valence electron, that is pentavalent impurity. So 5 और 3, ये इस टाइप की impurity को हम प्योर सेमीकंडक्टर में एड अप करते हैं और इससे सेमीकंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है. सो दैट इज़ द प्रोसेस, दिस इज़ अ फिनोमेना विच इज़ कॉल्ड डोपिंग एंड दीज इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड डोपेंट. तो क्लियर हो गया होगा ये, आई थिंक ये बहुत स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है. जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल, जैसे डेली लाइफ में, जनरल डे टू डे लाइफ में आप सॉल्ट या शुगर पिंच में ऐड करते हो, द सेम इज़ द थिंग हियर विद द प्योर सेमीकंडक्टर. ओके, ऐसा किया क्यों जा रहा है? बिकॉज
वी नीड द क्वालिटी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर। जब प्योर सेमीकंडक्टर होता है तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4 एंड दे आर टाइटली बाउंड इन द लैटिस। ओके, जैसा स्ट्रक्चर पहले आपने देखा था। अब क्या है कि इसमें तो हमें तो प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और होल कॉन्सेंट्रेशन मिल जा रहा है विच आर इक्वल इन अमाउंट। ओके, इसको प्योर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं और इम्प्योर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये इम्प्योर है क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी ऐड की गई है। दीज सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक। ये भी मैंने आपको पहले की लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें ये क्वालिटी होती है, दिस इज फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और प्योर बोथ आर सेम थिंग, एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर बोथ आर सेम थिंग। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू द होल कॉन्सेंट्रेशन और होल डेंसिटी। अब होल जो होता है वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी की क्लास में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लास के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक इन योर ग्रेजुएशन, like whatever be the concept of electronics starts with the concept of whole. Okay, so here इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये दोनों इक्वल होते हैं, बट अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखेंगे तो अभी हम उसका लैटिस स्ट्रक्चर चेक करते हैं वेदर दीज टू क्वांटिटीज आर सेम और नॉट। सो वी आर जस्ट गोइंग विद द लैटिस स्ट्रक्चर विद द बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू सेमीकंडक्टर काइंड and we will judge whether what is going on in the band diagram and in the lattice diagram. So let us begin. Okay, let's start p-type semiconductor. So here what is happening, let us take silicon. Okay, silicon का आपको band gap बताना है, forbidden energy gap for silicon and for germanium. First of all मैंने आपको बताया था 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है और तीनों फैक्टर लर्न होने चाहिए। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दिस फॉरबिडन एनर्जी गैप? फॉर सिलिकॉन इट इज, yes, for silicon it is 1.1 electron volt. What is this? This is forbidden energy gap. And for germanium this one is 0.7 electron volt. तो 0.7 जर्मेनियम के लिए होता है, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्वेश्चन एक अराइज होता है दैट इन स्पाइट ऑफ द लेसर फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम द मोस्टली यूज्ड सेमीकंडक्टर इज सिलिकॉन। Okay, this is very common question. This is asked in class 12th as well as in graduation too. The way of explanation is somewhat different, but this question is very much important. Why we prefer silicon to this germanium in spite of the greater forbidden energy gap? Okay, and I'm sure that you will find the answer of this one. You will search the answer for this and you will tell to me. सो सिलिकॉन के लिए हम पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर बनाते हैं तो सिलिकॉन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज इन द केस ऑफ जर्मेनियम 2. इफ देयर इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर दैट मीन्स वी आर एडिंग द ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी. ओके, सो ट्राईवैलेंट एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, लाइक गैलियम. जर्मेनियम के पास में अगर आप देखो, जर्मेनियम एटॉमिक नंबर इज 32 एंड द गैलियम एटॉमिक नंबर इज 31. तो जर्मेनियम के पास में आपको ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम मिलता है. पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद है तो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा दैट नियर बाई एटम, नियर बाई एलिमेंट टू द जर्मेनियम इज गैलियम हैविंग एटॉमिक नंबर 31. एंड सिलिकॉन के अगर बैक साइड में देखो तो सिलिकॉन इज 14. So silicon 14 से पहले आएगा 13 and 13 atomic number is for aluminium. So we can take the trivalent impurity on the basis of periodic table. Okay, there are so many atoms that carries. अब इसके ग्रुप में चले जाओगे गैलियम के ग्रुप में तो आपको जितने भी एलिमेंट मिलेंगे दे आर ट्राईवैलेंट. ओके, एंड अगर आप एल्यूमिनियम के ग्रुप में जाओगे विच इज़ इन द थर्ड ग्रुप, तो थर्ड ग्रुप में आपको जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे दे आर ट्राईवैलेंट. सो यू कैन ऐड अप द इम्प्योरिटी, बट इम्प्योरिटी ऐड करते समय भी ये ध्यान रखना होता है कि हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाला एटॉमिक नंबर नहीं लेना है. लाइक अगर 32 के इक्विवेलेंट आसपास आ रहा है तो 31 आ रहा है. ठीक है, ये जस्ट लाइक ऐसा ही है. लाइक इफ़ अ पर्सन इज देयर
हैविंग वेट 40 kg, तो 40 kg से की जो फाइट होती है रेसलिंग में, जब हम लेते हैं तो 40 kg को हम अप टू 45 kg तक ही रेसलिंग करा सकते हैं. सो दैट इज़ द कंडीशन कि यहाँ पे लैटिस जब स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो इनबैलेंस स्ट्रक्चर ना हो जाए, इसलिए वी शुड जस्ट चूज द डोपेंट like the similar category, similar weight, similar atomic number to that the pure semiconductor. तो अगर सिमिलर है तो ये अच्छी बॉन्ड क्वालिटी जो होता है, लाइक कोवेलेंट बॉन्डिंग जो फॉर्म करेगा, दैट विल बी मच मोर स्ट्रोंगर. अगर कोई स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आ गया जो कि बॉन्ड में यहाँ पर लैटिस स्ट्रक्चर में एज ए डोपेंट ऐड कर दिया गया, तो वो उस लैटिस स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा, दैट स्ट्रक्चर विल बी इन बैलेंस. तो हमें बैलेंस स्ट्रक्चर लेना है, इसलिए हम जो भी जर्मेनियम और सिलिकॉन जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं, इनके आसपास के ही एलिमेंट लेते हैं, बहुत दूर नहीं जाते. दैट वेट, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक मास शुड बी कंपेरेबल. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू? ओके, so this one is the main factor to choose the element on the basis of dopant added to the pure semiconductor. okay, सिलिकॉन के साथ में हम ऐड कर रहे हैं एल्यूमिनियम, तो आपने एल्यूमिनियम चूज करना चाहिए सिलिकॉन के साथ में अगर आप ले रहे हो. एल्यूमिनियम इज ट्राइवेलेंट एलिमेंट, so it carries only 3 electron. Afterward again one silicon, 1 2 3 4, again one silicon, 1 2 3 4. एक डोपेंट जो होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है, ppm, आई टोल्ड इट, ppm पार्ट्स पर मिलियन. तो मिलियन में सिर्फ एक डोपेंट एटम होता है. तो इसीलिए आप ये देखोगे इस स्ट्रक्चर में, तो इस स्ट्रक्चर में डोपेंट के चारों तरफ सिर्फ सिलिकॉन एटम यानी प्योर सेमीकंडक्टर ही होगा. ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल अमाउंट में ऐड किया गया है. गॉट माई पॉइंट? अब यहाँ पर नेक्स्ट में हम एल्यूमिनियम ले सकते हैं फर्दर, 1 2 3. ओके, सो इन दिस वे वी विल फॉर्म द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ p type semiconductor. okay, now you can see here that there are 3 electrons that may form the covalent bonding. semiconductor में covalent bonding ही होती है. अब यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. ठीक है, और यहीं से p टाइप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा. यहाँ पर भी बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है. ठीक है, अब आप देखो दैट एवरी इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग, बट देयर इज नो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हियर विद द एल्यूमिनियम एटम इन दिस साइड. सो व्हाट विल हैपन, बिकॉज एल्यूमिनियम is having lesser atomic number, it will just grasp the electron, it will just you can say it attract the electron towards its side from the silicon atom. just like एक small जो siblings होते हैं, younger one just imposing his wish to the elder one. तो elder one से छीनने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पर elder कौन है? सिलिकॉन. और एल्यूमिनियम इज यंगर वन. ओके, इट हैज़ एटॉमिक नंबर 13, इट हैज़ एटॉमिक नंबर 14. तो एल्यूमिनियम इज यंगर वन एंड एल्यूमिनियम इज जस्ट स्नैचिंग द मटेरियल और इट वांट फ्रॉम द सिलिकॉन. तो इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्नैच किया. ओके, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस बल्क में एल्यूमिनियम की साइड आएगा, वैसे ही सिलिकॉन की साइड क्या हो जाएगा? देयर इज अ होल, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी विच इज कॉल्ड होल. सो दिस वन इज द होल दैट इज जनरेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम एटम. नाउ you know that positive hole is a positive charge and electron is a negative charge. So hole attract electron towards itself. hole मैंने आपको डिफरेंस बताया, तो बहुत अच्छा डिफरेंस लिखा हुआ है उसमें, होल एंड द डिफरेंस बिटवीन द होल एंड इलेक्ट्रॉन. Physical appearance wise, the quality wise, you can find out the difference. I think that is given in my lecture number 2, the properties of hole and electron and concept of hole. So here this hole will attract this electron towards its side
and then the electron will jump towards this nearby hole, and there is a vacancy which is hole in this side. So in this manner the hole moves from one place to other place throughout the lattice. Okay, so you know that if we want to break this covalent bonding, we can break by the external force. Whether we are going to apply some electricity, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, हम थर्मल प्रॉपर्टी थर्मल सोर्स अप्लाई कर सकते हैं टू ब्रेक दिस कोवेलेंट बॉन्डिंग, एंड वन वी कैन प्रेस, दैट मीन्स वी कैन अप्लाई द प्रेशर टू ब्रेक दिस कोवेलेंट बॉन्डिंग. वी कैन डू एनीथिंग, मीन्स प्रेशर के थ्रू भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हो सकता है, एंड दिस थर्मल सोर्स के थ्रू भी यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग ब्रेक हो सकती है. तो जब कोवेलेंट बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, और हर एक इलेक्ट्रॉन जब फ्री होगा तो वहाँ पर होल्स जनरेट होंगे. दैट मीन्स व्हाट, देयर आर नंबर ऑफ होल्स एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस लैटिस. सो होल कॉन्सेंट्रेशन यानी नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड होल डेंसिटी, इज रिप्रेजेंटेड बाय NH, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय Ne. डेंसिटी मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो जितना इस लैटिस का वॉल्यूम होगा उसके कंपैरिजन में हम निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल को, बिकॉज देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन दिस लैटिस. सो व्हाट विल हैपन, देयर आर that number of electron corresponding number of holes are present in this lattice, but there is an extra hole present corresponding to this aluminium atom. So one aluminium atom के लिए one extra hole है. इसी तरीके से बहुत सारे एल्यूमिनियम एटम्स के लिए, क्योंकि एटम एक तो डाला नहीं जा रहा है, देयर इज सम पार्ट ऑफ द एल्यूमिनियम एटम विच इज डोप्ड इन दिस प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन. सो व्हाट विल हैपन, दैट देयर आर n number of holes which are greater than the number of electrons. Are you getting the point? So what will happen here in this p-type semiconductor, the number of hole concentration that is greater than the number of electron concentration. That means hole concentration is greater and the electron concentration is lesser. So that is why this crystal, this dopant crystal, this extrinsic crystal is called positive type semiconductor or p type semiconductor. Are you getting the point? So p type positive type क्यों होता है? Because there are greater number of holes compared to the number of electrons. This is called hole concentration. Hole concentration is more than electron concentration. So that is why it is called p-type semiconductor. अब हमारे पास एक benefit हो गया कि जो total में charge carriers हैं, इनको हम charge carriers कहते हैं, आगे हम यही word use करेंगे. So these charge carriers which are taking participate in electricity, which will just increase the amount of current in the sample. These charge carriers are now not equal, they are just differ from each other by their concentration. Okay, तो इसमें हमें extra charges मिलते हैं, and this is somewhat more conducting material as compared to the pure semiconductor, or you can say it as intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor means pure semiconductor जिसमें number of electrons और hole equal होते हैं. यहाँ पर number of holes और electrons equal नहीं है. ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर positive type semiconductor क्यों कहते हैं ये concept समझ में आ गया होगा. And my question was why we prefer silicon over germanium. You will find the answer of this question. It is important one. This may be asked in examination. ये थोड़ा सा tricky question है क्योंकि ये खाली 12th में नहीं, मैंने आपको बताया. This may be asked in graduation too. So p-type semiconductor lattice structure is clear to you. इसी तरीके से हम जर्मेनियम के साथ में गैलियम लेकर के p-type semiconductor form कर सकते थे. ठीक है, अब हम आते हैं इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम में. So if we are taking the energy band diagram, what will happen? There is a conduction band which is CB. There is a valence band which is VB, valence band VB. There is a Fermi level just at the middle of the forbidden energy gap EF.
the lowest level of the conduction band is represented by EC and the highest level of the valence band is represented by EV. Here the gap between the EC and EV is called EG, which is forbidden energy gap, and forbidden energy gap is represented by EC minus EV. If we are taking silicon, then this EG value is 1.1 electron volt, and if we are going to take that germanium, then this EG value is 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो एक्चुअल में हमें चाहिए क्या होता है. अब देखिए आप, हमें यहाँ मैंने जैसे आपको अभी लैटिस में बताया कि दैट लैटिस में पी टाइप सेमीकंडक्टर का रोल क्या आया, दैट इट इंक्रीजेज द चार्ज कैरियर्स and it increases the conductivity. That we can easily understand on the basis of the band diagram. How? When we add, you know that at room temperature the valence band is completely filled. ये थोड़ा सा slightly tilted है, slant आ रहा है. Okay, wait. Now it is okay. VB, I think now it is okay. Okay. That is called the reference level, FOR, frame of reference. मैं यहाँ सामने से देख रही हूँ, that may be somewhat tilted. Okay, so here what will happen, that there is a difference between the two bands, highest level of valence band and the lowest level of the conduction band. At room temperature the valence band is completely filled and the conduction band is completely empty. ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था. फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट बताया है आपको, फर्मी डिराक फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताया है. उसके बेसिस पे मैंने आपके 3 केसेस निकाल के दिखाए थे. यू कैन गो थ्रू विद दैट लेक्चर. तो यहाँ पर फर्मी लेवल इज द मिडिल लेवल. ओके, व्हाट हैपन्स टू दिस लेवल, दैट when we add the trivalent impurity, because trivalent impurity carries only 3 valence electron, so there is a level which is generated due to the addition of impurity, trivalent impurity in this pure semiconductor, and that impurity, because this impurity is accepting the electron from the प्योर सेमीकंडक्टर. वो क्या कर रहा था, मैंने आपको लैटिस में दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिलिकॉन से स्नैच कर रहा है, बिकॉज इट इज़ यंगर वन, एज आई टोल्ड यू. तो यंगर वन यानी कि एल्यूमिनियम एटम सिलिकॉन एटम से एक इलेक्ट्रॉन को स्नैच कर रहा है, और उस स्नैच के बेसिस पर ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है, और उस एक्सेप्टेंस के बाद एक होल की जनरेशन हो रही है, एक होल जनरेट हो रहा है. सो दैट इज़ वाई दिस इज द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल. दिस इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल EA. ठीक है, इसको मैं EA से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल. मैंने फुल में लिखा है, इसको शॉर्ट में ऐसे EA लिख देते, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल. और इसमें होते क्या हैं, होल्स होते हैं, एंड वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दैट डेफिशिएंसी इट स्नैचेस द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड. तो वैलेंस बैंड में जो सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड है, ये जो मैंने बैंड बनाया है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इट इज़ फॉर द सिलिकॉन एटम. तो प्योर सेमीकंडक्टर का जो वैलेंस बैंड है उसमें से ये इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे कहाँ पर, इस होल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और यहाँ पर फिर ये होल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन में, और ये सारे होल्स हटते जाएंगे. यानी अब इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने हायर लेवल पर आ चुके हैं, वैलेंस बैंड के हायर लेवल पर आ गए. ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए और होल्स कहाँ जनरेट हो गए, अंदर वैलेंस बैंड में, जो कि प्योर सेमीकंडक्टर के पास था. ठीक है, क्लियर हो रही है बात. जो आपको वो फिगर भी साथ में अभी मैंने बोर्ड पे रख की हुई है, बट आपकी कॉपी में वो फिगर बनी हुई है, तो उस फिगर को देखो. उस फिगर में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन के पास था, वो इलेक्ट्रॉन कौन स्नैच कर रहा है, दैट इज एल्यूमिनियम एटम. तो एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी होल थे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स होल, तो उसने इलेक्ट्रॉन को स्नैच करके अपने पास ले लिया. अब ये इलेक्ट्रॉन अपने पास लेने का मीनिंग ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए इस ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को हम एक्सेप्टर एटम भी कहते हैं. इसके पास ये एक्सेप्टर एटम है, दैट मीन्स ये क्या करता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. ठीक है, इसके पास होते क्या है, दे कैरीज होल्स. तो अब इलेक्ट्रॉन्स
अपने हायर लेवल पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल है, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल एंड द इलेक्ट्रॉन्स जम्प्स टू द हायर लेवल विच इज द एक्सेप्टर लेवल एंड होल दैट रिमेन्स इन द वैलेंस बैंड। तो इस तरीके से जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अब अपने अपर लेवल पे जंप करेंगे, ऊपर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आउटर सोर्स से एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलेगी तो उस एनर्जी के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे एंड द मीनिंग ऑफ कंडक्शन बैंड दे कैन टेक पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन को अब एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी चाहिए ताकि ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। हाउ मच एनर्जी? नाउ they need only this much of energy. This energy difference delta E that is equal to now EC minus of EA. Acceptor atom energy level and this one is conduction band lowest energy level. तो अब क्या होगा कि इतने एनर्जी गैप चाहिए जो कि फॉरबिडन एनर्जी गैप से कम हो गया। फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना था? EC माइनस EV। अब यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस कितना? EC माइनस EA। नाउ the atom needs less energy from the external source to take participate in electricity, to be conducting, to gain the conducting quality. So that is the difference of adding impurity. That is the difference between intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. तो जब हम impurity add कर देते हैं तो conducting quality increase हो जाती है। By which way? By this way that electron may jump up to the higher level. This is acceptor level. Got my point? तो I think कि band diagram से concept clear हो रहा होगा that we need to apply less energy to make a semiconductor, extrinsic semiconductor, a conducting material at room temperature. Okay? Clear है ये concept? Got the point? तो अब इसमें एक क्वेश्चन जनरेट होता है एंड वो क्वेश्चन आपने सर्च करना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले दे दिया, सिलिकॉन इज सुपीरियर टू दैट एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई कार्बन इज नॉट अ सेमीकंडक्टर even it has 4 valence electron. Got my point? This is question number 2. So I think you will find these two questions. This question, answer for this question is given in your NCERT book. My purpose is that only, that you will read the NCERT book and you will find the answer. So this answer is given in your NCERT book. You will search the answer and you will find the answer here easily. So in my next class, I will ask the question and I am sure that you will respond accordingly. So these are the two questions for today's class and this is the band diagram which is not given in NCERT book. You can go through with this band diagram and you can get easily the concept why the extrinsic semiconductor is preferable to this intrinsic semiconductor. So this one is p-type semiconductor. Now come to n-type semiconductor. ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर मीन्स नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। और नेगेटिव टाइप कब बनेगा? व्हेन वी आर एडिंग प्योर प्लस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अब इजी हो जाएगा क्योंकि आप ट्राइवेलेंट समझ चुके हो, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट। नाउ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी सिलिकॉन के पास, सिलिकॉन इज प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन के पास कौन सा पेंटावेलेंट होगा? 14 के पास कौन सा आता है? 15 इज फॉस्फोरस। तो पीरियोडिक टेबल से आप चेक कर लेते हो दैट पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, यानी इसमें हमें फॉस्फोरस ऐड करना चाहिए। अगर हम जर्मेनियम की बात करते हैं तो जर्मेनियम इज 32, तो 32 के साथ में हमें ऐड करना चाहिए 33, तो 33 होता है आर्सेनिक का, दैट इज आर्सेनिक। तो हमें जर्मेनियम में आर्सेनिक ऐड करना चाहिए और सिलिकॉन में फॉस्फोरस ऐड करना चाहिए टू मेक इट एज अ n type semiconductor, that is pentavalent impurity doping. So here what will happen if we are adding pentavalent impurity? So then we can find out the lattice structure first. Arsenic to the silicon, no, phosphorus to the silicon, so arsenic to the germanium. इसके पीछे भी मैंने आपको रीज़न बता दिया है that germanium is 32, arsenic is 33. Both are same weight, same atomic number, equivalent weight, equivalent atomic number,
product or atom or element. So that is why we need to combine these two. ज़्यादा डिसबैलेंस स्ट्रक्चर हो जाता है जब हम ज़्यादा गैप का एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट एलिमेंट्स एड अप करते हैं. सो वी नीड टू बी अ बैलेंस स्ट्रक्चर. We need to have balanced structure. So we need to have balanced structure, and that's why what will happen that germanium carries 4 valence electron and arsenic carries 5 valence electron, 1 2 3 4 and 1 extra I am just forming here. This is 5th valence electron. Afterward germanium 4 as I told ppm parts per million. तो मैक्सिमम जर्मेनियम एटम होंगे और ऑर्सेनिक के कम से कम एलिमेंट होंगे. यहाँ पे मैं एक ऑर्सेनिक और डाल देती हूँ सो दैट यू मे गेट द क्लियर कॉन्सेप्ट. अदरवाइज यहाँ पर भी ऑर्सेनिक नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो हियर इज जर्मेनियम, दिस वन इज जर्मेनियम. ओके. नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पर अभी मैं नहीं फॉर्म कर रही हूँ. ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है? दिस इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर. आई टोल्ड यू दैट देयर आर 3 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. वन इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वन इज बैंड स्ट्रक्चर एंड वन मोर इज द that basic structure which I explained you in my very first lecture. You can go through with that. Here this one is the covalent bonding between this lattice element. ओके ये हो गया आपका. एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा. यहाँ पर देखो ये भी कोवेलेंट बॉन्डिंग में चला जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच रहा है. तो हर एक ऑर्सेनिक एटम के कोरस्पॉन्डिंग में आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है. दिस इलेक्ट्रॉन में मूव थ्रू द लैटिस बिकॉज इट इज़ फ्री ऑफ बॉन्डिंग, एनी काइंड ऑफ बॉन्डिंग. इट इज़ फ्री लाइक it can move from one place to other place because it does not bound in this covalent bonding. So what will happen that the arsenic atom is providing one electron to the pure semiconductor. That is why this arsenic atom is a donor atom. This dopant is donor atom. और डोनर एटम का सिंबल होना चाहिए पॉजिटिव क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. तो इसीलिए डोनर एटम को पॉजिटिव सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक्सेप्टर एटम को वी विल रिप्रेजेंट इट विद द नेगेटिव सिंबल. ओके, बिकॉज इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. तो एक्सेप्ट जब करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो जाएगा एंड दैट विल जनरेट द नेगेटिविटी टू द एक्सेप्टर एटम. वो जो मैंने आपको ट्रैवेलेंट इम्प्योरिटी में बताया था. आर्सेनिक में एक इलेक्ट्रॉन ये लैटिस को दे रहा है. ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है. ये इलेक्ट्रॉन अब इसकी वैल्यू इस आर्सेनिक एटम के लिए नहीं है. ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो जो एटम होता है दैट विल बी द बैलेंस स्ट्रक्चर, दैट इज स्टेबल स्ट्रक्चर. सो दैट इज वाई it don't need this electron and it will provide this electron to the lattice and this electron can participate in electricity similar to the next arsenic atom. So we can easily say that electron concentration is greater than hole concentration because there are extra electron due to the impurity atom which is the donor atom and these electrons can participate in electricity. So electron concentration is greater and the hole concentration is lesser, and that's why this kind of extrinsic semiconductor is called negative. N-type semiconductor means what? Negative type semiconductor because it is providing the electron to the lattice structure. So that is why it is negative type or N-type semiconductor. तो structure clear हो गया होगा. ओके, वहाँ पर ट्राइवेलेंट में क्या मिल रहे थे? होल और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन. ये स्ट्रक्चर जब क्लियर हो जाते हैं ना, यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स में टाइम लगता है दैट इज़ ओनली इन द बेसिक. जब बेसिक क्लियर हो गए तो सर्किट में बिल्कुल टाइम नहीं लगता क्योंकि आपके माइंड में वो बेसिक फीड अप हो चुके होते हैं. ठीक है, अब हम आ जाते हैं बैंड डायग्राम पे. यहाँ मैं साथ में ही बना रही हूँ बैंड डायग्राम. सो दिस वन इज कंडक्शन बैंड एंड द लोएस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड इज EC. दिस वन इज वैलेंस बैंड, the VB valence band, and the highest level of valence band is represented by EV. This middle level is called Fermi level, EF. The gap between the lowest level of the conduction band and the highest level of
valence band is Eg and Eg is equal to Ec minus of Ev. ये तो क्लियर हो गया होगा, इसीलिए लोएस्ट लेवल और हाईएस्ट लेवल की इंपॉर्टेंस होती है, ये पहले भी आप पढ़ चुके हो। उसके बाद आपका क्या आता है, दैट इज़ द डोनर एटम। जो डोनर एटम है वो पेंटावेलेंट है, तो पेंटावेलेंट जो हो गया, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो इसके एनर्जी लेवल को हाई कर देता है। तो जो डोनर एटम का लेवल होता है दैट विच इज़ नियर बाई टू दिस कंडक्शन बैंड, ये है डोनर लेवल ED। ED मीन्स व्हाट, डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल हायर लेवल पे है बिकॉज इट कैरीज इलेक्ट्रॉन एंड इट इज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं इस लेवल में। ये इलेक्ट्रॉन अब इनको सिर्फ इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए एनर्जी, द गैप बिटवीन द टू विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ई। जैसे मैंने ट्राइवेलेंट में बनाया था वैसे यहाँ पर भी बनेगा। डेल्टा ई इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल रिक्वायर्ड टू जम्प द इलेक्ट्रॉन from the donor level to the conduction band and then electron can take participate in electricity। तो ये इतनी एनर्जी कौन देता है, एक्सटर्नल सोर्स। कौन से एक्सटर्नल सोर्स, द फील्ड एक्सटर्नल सोर्स। फील्ड मीन्स क्या, बैटरी लगा दो या सेल लगा दो तो यहाँ पर इतना एनर्जी गैप कंप्लीट हो जाएगा। या थर्मल इफेक्ट से, यानी सेमीकंडक्टर को, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करो या रेडिएशन एनर्जी प्रोवाइड करो, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से हमें इतनी एनर्जी देनी है इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, सो दैट these electron can take participate in electricity and this extrinsic semiconductor may become the good conductor। ओके तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेंगे, ये जो डेल्टा एनर्जी गैप है वो कितना होगा, EC माइनस ऑफ ED। EC माइनस ED अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, दैट मीन्स N टाइप सेमीकंडक्टर को मिल जाती है तो ये एक गुड कंडक्टर फॉर्म कर लेगा। ओके सो दिस वन इज़ द बैंड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर पहुँच जाते हैं कंडक्शन बैंड में तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है विच इज़ कॉल्ड होल। ओके जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे यहाँ पर होल जनरेट हो जाएगा बिकॉज इट इज़ द लैटिस स्ट्रक्चर। लैटिस स्ट्रक्चर इज समवॉट केक लाइक स्ट्रक्चर। तो केक में से अगर आप चोको पीस निकाल देते हो तो वहाँ पर एक गैप होता है, दैट गैप इज कॉल्ड अ होल। सो हियर दिस होल दैट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, मैंने आपको बताया था, दिस इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज द प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन इन द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों आज आपने अच्छे से क्लास अगर देखी है तो आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क टू मी। एंड द टू क्वेश्चंस, फर्स्ट वन इज व्हाई वी प्रेफर सिलिकॉन ओवर जर्मेनियम, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकंड क्वेश्चन, why does carbon is not a semiconductor in spite of the fact that carbon carries 4 valence electron? It is not a semiconductor, it is non-conductor. So why carbon is not counted as a semiconductor? So this is my question number 2 and I hope that you will get the answer by today only and you will respond me accordingly. So thank you for today. Next I will come with formation of PN junction and Zener.